আন্দামান ভ্রমণের শেষ দিন আমাদের কাছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আজ আমরা দেখতে যাচ্ছি জারোয়াদের গ্রাম। বারোটার মধ্যে ওয়ান সাইড 10 কিলোমিটার, 110 কিলোমিটার বাই রোড। এখন আমরা 40 কিলোমিটার যাব। যে মেন গেট জিরগাটাং, ওখানে ফর্ম বগেরা ভেরিফাই হবে, আপনাদের আইডি আমার ওখানে শো করতে হবে। পোর্ট ব্লেয়ার থেকে প্রথমে আমরা যাব জিরগাটাং, 40 কিলোমিটার দূরত্ব। ফরেস্ট, যেটা জারোয়াদের এলাকা, ওই জঙ্গলের ভিতরে জারোয়া দেখা যেতে পারে, দেখা যায়। কালকে আমি গিয়েছিলাম, দেখা যায়, ঠিক আছে। ওখানে যাওয়ার পরে যে যখন মিডল স্টেট পৌঁছে যাবো, বা জিরগাটাং থেকে মিডল স্টেট পৌঁছাবো, ওখানে আমি গাড়ি পার্ক করবো। ওখানে একটা বাইকেল বেরি দাঁড়িয়ে থাকবো গভর্নমেন্টের, যেটা এখান থেকে চড়বো, ওই পারে যেয়ে আমরা নামবো। ওখান থেকে লাইমস্টোন কেবে যাওয়ার যে স্টিমার থাকে 10 সিটার, আপনারা 4 জন আছে, আরো আপনাদের সঙ্গে 6 জন গেস্ট থাকবে, একসঙ্গে আমি টিকিট অ্যারেঞ্জ করে দেবো, ঠিক আছে। ভালো কথা। জিরগাটাং থেকে প্রায় 60 কিলোমিটার জঙ্গল সাফারিতে দেখা যেতে পারে জারোয়াদের, কিন্তু ছবি তোলা মানা, গাড়ি দাঁড় করানো যাবে না। এক টাইমে দেওয়া যেত, টুরিস্টও যে দিত, অনেক কিছু দিত, তো এখন এসব ব্যান্ড করে রেখেছে, এখন কিছু মানা নেই। এখানেই ফরেস্টের চেকপোস্ট। সমস্ত রকম পারমিশন করানোর পর সমস্ত গাড়ি একসাথে রওনা দেবে মিডিল স্টেটের দিকে। জিরগাটাংকে টুকটাক খেয়ে নেওয়া যেতে পারে, এরপর বারাটাং পর্যন্ত কিছুই পাওয়া যাবে না। ওই একসঙ্গে যেতে হবে, সব একসঙ্গে লাইন থেকে গাড়ি যাবে, কেউ কাউকে ওভারটেক করবে না, এবং ওই সময় বোধহয় ওই সময় দেখতে পাওয়া যাবে, ওই সময় দেখতে পাওয়া যাবে, ওখানে ভিডিও করা মানা আছে। আমরা সাউথ আন্দামান ঘুরে বেড়ালাম। সাউথ থেকে নর্থ আন্দামান যাবার রাস্তা হলো এটা। জিরগাটাং চেকপোস্টেই দেখা যাচ্ছে নর্থ আন্দামানের দূরত্ব। বেশ কয়েকজন জারোয়া দেখে আমরা পৌঁছালাম মিডিল স্টেটে। এখান থেকে সরকারি ভেসেলে রওনা দিলাম বারাটাংকের উদ্দেশ্যে। বারাটাং থেকে স্পিড বোটে করে আমাদের গন্তব্য লাইমস্টোন কেভস। স্পিডবোট 10-15 মিনিট যাবার পরই ঢুকে পড়ল গভীর ম্যানগ্রোভ ফরেস্টের মধ্যে। এখান থেকে লাইমস্টোন কেভের দূরত্ব 1.2 কিলোমিটার। আমাদের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হেঁটেই যেতে হবে। লাইমস্টোন কেভ যাবার পুরো রাস্তাটা বারাটাং ফরেস্ট ডিভিশনের আন্ডারে। এই জঙ্গলে প্রচুর পাখি দেখতে পাওয়া যায়। ये कितना परिवार है यहाँ पर? फैमिली 8, 40 से 50 के आसपास लोग हैं। ओ यहाँ पर ही रहता है, यहाँ पर ही सब कुछ।
एक्चुअली ये लोग जो है इनके पेरेंट्स लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। ओ फॉरेस्ट फिर हटाते भी नहीं, एक्चुअली ये रिजर्व फॉरेस्ट एरिया पड़ता है। हाँ, तो रिजर्व फॉरेस्ट में कैसे ये लोग रह रहते हैं? इस जमाने में ऐसा हो सकता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यहाँ पे बना नहीं था, ऐसा हो सकता है। हाँ हाँ, এর মধ্যে কয়েকটি পরিবারও বসবাস করে। इधर देखो, हाँ? सूरज माजी सर। सूरज माजी जी। तो आप कहाँ से आए हैं? आपकी झारखंड? झारखंड से ग्रैंड पेरेंट्स आए थे सर। हाँ, ग्रैंड पेरेंट्स आया था, यहाँ पर ही रह गया। यहाँ पर ये लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बिलोंग करते थे। अच्छा अच्छा। कितना करके नींबू पानी? 30 रुपया। 4 दीजिए। और ऐसे ही थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे ना, वहाँ से स्टोन के अंदर पूरा आपको शाइन, चमक और स्टोन पूरा व्हाइट कलर में देखने को मिलेगा। মূলত ক্যালসিয়াম কার্বনেটের এই লাইমস্টোন কেভ তৈরি হয় স্ট্যালেকটাইটস আর হেলেকটাইটস দিয়ে। जो बहुत सारे केव, इसी केव का नाम जो लाइमस्टोन केव है, स्पेशली कुछ नाम रखा नहीं है, सिर्फ चूना पत्थर की गुफा ऐसा ही बोलते हैं। और इस केव का जो फॉर्मेशन हुआ है आज से लगभग 1000 से 1500 साल पहले, काफी सालों पुराना है ये केव। और ये केव जो है ऐसे पहले नीचे से ऊपर जाता है, पूरा कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, ऊपर जाने के बाद ऊपर से नीचे भी आता है, वो आगे दिखाएंगे। और इस केव का टोटल जो लेंथ है, लंबाई पूरा 100 मीटर का, उसमें से यहाँ से लेकर के जो है बाहर का जो मैंने एंट्रेंस बोला था ना, वहाँ तक का जो 60 मीटर्स का पार्ट है, जो कि डायरेक्ट सनलाइट और रेन वाटर पड़ने की वजह से डेड पड़ चुका है, उसकी ग्रोथ रुक चुकी है। और यहाँ से अंदर 40 मीटर्स बचा है, जो कि अभी भी ग्रो हो रहा है, बढ़ रहा है। तो स्टोन जो ग्रो करता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट और लाइम वाटर के डिपोजिशन से। तो यहाँ से अंदर आप लोगों को डिफरेंट टाइप के शेप्स और स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, बस वही देखिए। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर वहाँ पर ऊपर आपको दिखेगा शीट जाड़ा का स्ट्रक्चर, बैकबोन। ये जो है सिलिका और माइका की वजह से ऐसे शाइन होता है, शाइन करते हैं। सिलिका माइका काफी ज्यादा मात्रा में मिक्स होता है, ये देखिए। और जहाँ पर भी स्टोन में आपका ऐसा शाइन दिखता है और स्टोन पूरा व्हाइट कलर में आपको देखने को मिलता है, बस उसी जगह पर स्टोन बढ़ रहा है। बाकी ऐसा ब्लैक पार्ट आपको कहीं पर दिखता है डायरेक्ट सनलाइट पड़ने की वजह से और टच करने की वजह से ऐसा होता है। इसलिए बार देख लीजिए मंदिरों में जो शंख होते हैं, जो शंख बजाया जाता है, पूरा आपको शंख के आकार में देखने को मिलेगा। शंखेर मोतो। और ठीक उसके ऊपर देख लीजिए झाड़बाती, लाइट वाला जो झूमर होता है ना, शैंडलर जो होता है, बिल्कुल वैसे आपको देखने को मिलेगा। ऊपर देख लीजिए, यहाँ में जो आप लोगों को जो 2 तरह के स्टोन देखने को मिलेगा। ये नीचे वाला जो स्टोन है, इसका नाम है स्टैलेक्टाइट है। স্ট্যালেকটাইটসের ধর্ম হলো যেটা উপর থেকে ঝুলে থাকে, আর হেলেকটাইটস নিচ থেকে উপর দিকে ওঠে। बट इस गैप को फिल होने में, भरने में कुछ सालों का समय लगेगा, क्योंकि ये साल में जो है आधे से 1 इंच बढ़ता है, पर ईयर 1/2 to 1 इंच, इससे ज्यादा नहीं बढ़ता। और जो है ना, ये जब किसी दिन जुड़ जाएगा, इसके बाद में इसका नाम जो है चेंज होकर के हेलिकटाइट, जो पूरा न्यू फॉर्मेशन हो रहा है। व्हाइट वाला ये पूरा नया बन रहा है। ये देखिए इस तरफ भी है, ये देखिए शाइन कर रहा है, पूरा व्हाइट में आपको दिख रहा है, ये पूरा नया बन रहा है। ये उल्टो, ये देखिए कमल की कली बिल्कुल ही उल्टा आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए ये रहा। और यहाँ ऊपर देख लीजिए छोटा सा आपको गणपति बप्पा दिखाई देगा, ये देखिए। अब वहाँ देख लीजिए, वहाँ में आप लोग देखने को मिलेगा बेबी एलिफेंट, छोटा सा हाथी बना हुआ, ये हेड लगेगा और ये है बॉडी। এবার আমাদের ফেরার পালা। সব বেড়ানোই এক সময় শেষ হয়, তেমনি আমাদের আন্দামান ট্রিপের আজ শেষ দিন। বারাটাঙ্কের একটি হোটেলে খাওয়া দাওয়া করে সরকারি ভেসেলে চেপে মিডিল স্টেট তারপর সেখান থেকে গাড়ি করে পোর্ট ব্লেয়ারে আমাদের হোটেলে।
পরের দিন সকালবেলা হাতে কিছুটা সময় পেয়ে আমরা সোজা চলে গেলাম রামকৃষ্ণ মিশনে। সেখানে কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে আমরা আমাদের হোটেল থেকে চেক আউট করলাম এবং চেক আউট করে এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম।